السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں نیو ناول جس کا نام ہے ہم اسیر اقرار کے۔ اس سے رائٹ کیا ہے جیا باسی نے۔ تو چلیے آج کے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ چودھری سائیں، ہمیں انصاف چاہیے۔ اس ظالم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا، میں چاہتا ہوں اس کی ایسی سزا دی جائے کہ پورا گاؤں یاد رکھے۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑا آنسو بہاتے ہوئے اپنی 12 سالہ بیٹی زینب کے لیے انصاف مانگ رہا تھا، جس سے وہ جہاد شیخ کے بیٹے فیروز شیخ نے اپنی حوث کا نشانہ بنا دیا تھا۔ تم فکر نہ کرو سراج الدین، کل پنچایت میں تمہاری بیٹی کو ضرور انصاف ملے گا۔ جاؤ، تم سے ہماری ملاقات اب کل صبح پنچایت میں ہی ہوگی۔ سگریٹ کا سگار کا کش لیتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولا، جس پر سراج الدین سر جھکائے وہ بھاری ہوتے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی جانب چل پڑا، جہاں اس کی بیوی اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اس کے بخار کو کم کرنے کی کوشش میں الکام ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا؟ چودھری سائیں نے سراج الدین کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے رشید نے بی بی سے پوچھا۔ ایک نظر ساتھ ہی بیٹھے اپنے 22 سالہ بیٹے ارشاد پر ڈالی، جو خود بھی باپ کی جانب متوجہ تھا۔ کل پنچایت میں فیصلہ ہوگا، افسردہ لہجے میں کہتا ہوا وہ وہیں بچھی چارپائی پر لیٹ گیا، جیسے مزید اور کچھ نہ کہنا چاہتا ہو۔ ارد شیر نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ایک نظر بخار میں تپتی اپنی بہن پر ڈالتا اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ صبح کی سورج کے ساتھ ہی گاؤں کے سب لوگ پنچایت میں جمع زینب کے لیے انصاف کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خاموشی پھیلی تھی۔ سراج الدین پر امید نظر سے چودھری سائیں کو دیکھ رہا تھا، جو امن فیصلہ سنانے جا رہے تھے۔ یہ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی کہ چودھری سائیں نے رک کر ایک نظر وہاں کھڑے لوگوں پر ڈالی۔ ہر شخص سانس روک کے ان کی بھلے کا انتظار تھا۔ وہ جہاد شیخ کا بیٹا فیروز شیخ سراج الدین کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کے مرتکب ہے، جس کے بدلے میں سراج الدین کا بیٹا ارشاد فیروز سراج بھی جہاد شیخ کی بیٹی کے ساتھ وہی عمل دہرا کر اپنی بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ لے گا۔ یہی پنچایت کا فیصلہ ہے، اور پنچایت کے اس بہترین فیصلے پر وہاں کھڑے ہر شخص کو سانپ سونپ گیا تھا۔ ایک گناہ سرزد ہوا تھا، جس کے بدلے دوسرا گناہ کی اجازت دی جا رہی تھی۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف تھا؟ وہ جہاد شیخ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، کیونکہ دوسری صورت میں ہی ان کے بیٹے کو انحصار کر دیا جاتا تھا، جو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ اکثر کو اس فیصلے میں اعتراض تھا، مگر پنچایت کے فیصلے کے سامنے بولنے کی اجازت کس کو نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہے بابا سنگ؟ اردہ شہر نے غصے سے مٹھیوں کا پنجہ سراج الدین کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت بس فیروز شیخ کی جانب شیراز شیخ کی جان لے لینا چاہتا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھ گیا تھا۔ انصاف اب جہاد شیخ کو اپنا چلے گا۔ عزت کا لوٹ جانا کیا ہوتا ہے؟ نفرت لہجے میں کہتا وہ وہاں سے نکلتے چلا گیا۔ ان کے اندر جلدی بدلے کی آگ نے صحیح غلط کو فکر جلا کر راکھ کر دی تھی۔ پنچایت یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ میری بچی کی نیند کی تباہ ہو جائے گی۔ وجاہت شیخ کی بات سن کر اندر ندرت شیخ روتے ہوئے بلی اس وقت تو یہ بھول گئی تھی کہ ان کا اپنا بیٹا بھی کس کی زندگی تباہ کر چکا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ وہ شیروز کو جان سے مار دیں گے۔ اور جہاد شیخ بے بسی سے بولے، جبکہ کمرے کے باہر کھڑی اماں ابا کی باتیں سنتے مبرہ اس فیصلے پر ساکت رہ گئی تھی کہ کچھ گھنٹوں بعد اس کی عزت کا بھی جنازہ اٹھنے والا تھا۔ یہ بات ہی اس کا دماغ معاف کر کے ہی تھی۔ ماں ابا اور بھی کچھ کر رہے تھے، مگر وہ بھاری ہوتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک زنا کے بدلے دوسرا زنا۔ 16 سالہ کی مبرہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ ان سب باتوں کو سمجھ نہ پاتی۔ کیوں؟ کیا آپ نے؟ شیروز بھائی ایسا اب میں کیا کروں گی؟ وہ روتے ہوئے
وہیں بیٹھ کے قریب فرش پر بیٹھ کے معاشرے میں زیادتی شدہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ اپنے گاؤں میں وہ ایسی کئی عورتوں کو دیکھ چکی تھی جو سب کے اچھلتے تھے، کوئی رشتے کے ان کے گھر کا رخ نہیں کرتا، لیکن لوگوں کی خارطوں پر نظریں اور ذلت اٹھاتے اٹھاتے وہ تنہائی دنیا میں رخصت ہو چکی تھی۔ اور بھی یہ رسوائی اور ذلت پنچایت میں اس کے نصیب میں بھی لکھ دی گئی تھی، پر کون جانے کب تک تقدیر اس کے لیے کیا سوچا ہوا تھا۔ رات کی سیاہی نے اس گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، ہر طرف سناٹا چھپا ہوا تھا۔ جب اس کے سناٹے کو چیتی قدموں کی آواز کی گلی میں سنائی دینے لگی، وہ چلتے ہوئے اس دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہونے تھے جہاں وہ بدنصیب رہتی تھی، جو اس کے پل بھر بھی جن کی جنم بننے جا رہی تھی۔ کون ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے بھاری مردانہ آواز، ارے سراج الدین، دروازہ کھولو۔ سراج الدین کی آواز پر مقابل نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سامنے پر وجاہت شیخ کھڑا تھا، جس کے پیچھے کمرے سے نکلتی ندرت دو نفوس کو دیکھتے ہی رونا شروع کر چکی تھی۔ اندر نہیں بلاؤ گی وجاہت؟ سراج الدین کے آواز پر وجاہت شیخ نے فوراً ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر راحت شیخ کو آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے سراج الدین گردن اکثر پھاڑ کر اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے۔ اسے سارے وقت میں رد شیر خاموش کھڑا ہے، اسے کے پاس زیادہ لہرت ہے۔ وجاہت، وقت آ گیا پنچایت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے بولا، اگر آج ان کی بیٹی اپنے خود سے نہ گزر رہی ہوتی تو شاید اس سے قسم کی بیسی کا مظاہرہ کبھی نہ کرتے، مگر بدلے کی آگ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ ایک بیٹی کے باپ ہو کر بھی وہ کسی دوسرے کی بیٹی کو اس کی جیل سے گزارنے جا رہے تھے۔ ندرت وجاہت شیخ نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، جو وہ صفحے پر بیٹھی بے آواز رونے جا رہی تھی۔ شوہر کے کہنے پر وہ بھی ایک انچ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ مجبوراً وجاہت شیخ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے اور چند منٹ بعد ہی سر جھکائے بھرا باپ کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ وجاہت شیخ منٹ بعد وجاہت شیخ نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا، جس پر وہ سر جھکائے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ندرت کے رونے میں روانی آ گئی۔ سراج الدین کے اشارے کرنے پر رد شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مرا کا بازو تو بوجھتے واپس اسی کمرے میں لے گیا جہاں اسے ابھی وہ باہر آئی تھی۔ دروازہ بند ہونے پر بے بسی کی مہرت بنے وجاہت شیخ وہیں صفحے پر رہ گیا۔ بیٹی کی جان کا سوال نہ ہوتا تو اپنی بیٹی کی طرف اٹھنے والی آنکھیں نوچ لیتا، مگر قسمت اس کی کھیل میں وہ ان ہاتھوں کو نہ روک پایا جو ان کی بیٹی کی طرف بڑھے تھے۔ کتنا ہی وقت گزر چکا تھا جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور کسی ایک پر ہی نظر ڈالے بغیر رد شیر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ہی ممبرا فرش پر بے حال بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ندرت تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ وجاہت شیخ کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا اور سراج الدین پکڑ پر مسکراہٹ جھکائے پر سجائے خود پر ارد شیر کے پیچھے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ 16 برس کی بالی عمر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ دنیا میں سب سے پہلے جس نے یہ دل دیا، دنیا کے سب سے پہلے دلبر کو سلام۔ دل سے نکلتے والے راستے کا شکریہ، دل تک پہنچنے والے ڈگر کو سلام۔ سلام، اے پیار تیری پہلی نظر کو سلام۔ راستے میں وہ برستی بارش کے باعث لاہور کا گرد ہاسٹل اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جس کو دور کرنے کے لیے وہ کمرے میں موجود موم بتیاں جلاتے ساتھ ساتھ گنگا بھی رہی تھی۔ لبوں پر ایک تبسم اٹھا تھا۔ وہ موم بتیاں جلا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھتی کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ برسات کا یہ موسم اسے ایک الگ ہی جہاں میں لے جاتا، جس میں وہ خوشیوں سے بھرے کوسوں خزاں کے ہر رنگ کو اپنی زندگی میں بستہ محسوس کرتی تھی۔ ابھی ابھی وہ ہاتھ ہلائے باہر برستی بارش کا محسوس کرتی، ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی جب پیچھے سے آتی عارفہ کی آواز پر چونک کر مڑی برا، میڈم اب 16 سال کی نہیں ہے کہ ہو چکی ہیں، پھر یہ کون سی پہلی محبت کو آپ سلام بھیج رہی ہیں؟ ہاتھ میں موجود ڈورچے کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے وہ معنی خیز لہجے میں سوال کر رہی تھی۔ پتہ چلا ابھی تک جنریٹر کیوں نہیں چلایا؟
आरफा के सवाल को दूसरे से नज़रअंदाज करते हुए इसने अपना सवाल दागा। खराब हो गया है मैडम, और अब कल ही ठीक होगा, इसलिए आज की रात ये मोमबत्तियाँ जलाते और मच्छरों को मारते हुए गुजारा करो। कहते हुए इसने हवा में हाथ चलाया। मच्छरों को भगाने की नाकामी कोशिश थी। ये क्या बात हुई? अगर सारी रात जागते रहेंगे तो हॉस्टल की हर लड़की कल यूनिवर्सिटी में सोती हुई मिलेगी। मोरा खड़े खिड़की के सामने ही बैठी बेड बेड पर जा बैठी। चेहरे पर परेशानी के अटार मौजूद थे। वो लग बातें मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में दिखाई नहीं दे रहे थे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, रात रात भर जाके पढ़ाई भी तो करते हैं। खैर मुझे तो नींद आने लगी है, मैं तो चली सोने। ये शब बखैर कहते हुए वाकई सोने के लिए लेट चुकी थी। मुबर्रा ने घुर कर इसे देखकर इसने सुना था कि नींद सोली भी पर भी आ जाती, और आज इसने देख भी लिया था। न चाहा वो भी अपने बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर आंखें बंद करते ही नजर के सामने वो चेहरा आबसा जिसने 4 साल पहले से अपना सिर बना लिया था। इसने घबरा कर आंखें खोली दी और फिर बेमकसद वो छत को तकती रही। तो ये तय हुआ है कि इसके कई रंग। अम्मा जल्दी करें, मुझे तय तो ये तय हुआ है इसकी कई रात तक जागे। आज की ये रात भी शामिल हो चुकी थी। अम्मा जल्दी करें, मुझे देर हो रही है कॉलेज के लिए। 16 साल जैनब ने एक बार फिर बुलंद आवाज लगाई, जिस पर किचन में काम करती रशीदा बेगम ने घबरा कर डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी बेसब्री बेटी को देखकर सुबह नाम की कोई चीज़ नहीं है दम में हाथ में ट्रे थामे वो किचन के बाहर आते हुए बोली, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है उर्दू में, और मुझे ऑफिस के लिए। जैनब के बराबर में बैठा और उर्दू यार फौरन बहन का साथ देते हुए बोला, तुमने ही ये बिगाड़ रखा है इसे। रशीदा बेगम उर्दू शेर को घुरते हुए बोली, इसमें बिगड़ने वाली क्या बात है? खैर छोड़ो, सारम कहाँ है? उर्दू शेर ने बात बदलने के लिए खुद से छोटे भाई के मुंतलक पूछा। वो अपने दोस्तों के साथ सुबह ही घर से निकल गया, जो जवाबन जैनब की तरफ से आया था। शर्म करो, तुमसे 2 साल बड़ा है। रशीदा बेगम ने फौरन उठ कर, भाई सही कह रही हो अम्मा। शेर ने भी वहाँ की ताई की रिश्त पर जैनब बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने बैग उठाकर खड़ी हो गई। मेरा नाश्ता हो गया, अब चलिए, कॉलेज के लिए देर हो रही है। हो जी हाँ चलो। कभी शेर भी आधा सबकत अपनी जगह से उठा और जैनब के साथ घर में बाहर निकल गया। सीधा बेगम ने नफे में सर लाते हुए इन्हें चलते देखा और फिर टेबल पर मजदूर नाश्ते के छोटे बर्तन उठाने लगी। जूठे बर्तन उठाने लगी। इन्हें लाहौर आने जो 4 साल गुजर चुके थे। इसी वाक़े के बाद सिराजुद्दीन गाँव छोड़कर बीवी बच्चों समेत लाहौर चले आए थे, जहाँ इनकी बहन अपनी शौहर और बच्चों के साथ पहले से वहाँ मौजूद थी, और अब अनकरीब जैनब के सासू के अहद पर भी फायद होने वाली थी। क्लास में एक बार वो दोनों कॉरिडोर से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में चली आई थी, जहाँ अभी मौसम अभ्र आलूदा हो रहा था। लगता है फिर बारिश शुरू हो जानी है, हमें इससे पहले हॉस्टल चले जाना चाहिए। मुबर्रा आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ ठीक है कह रही हो, चलो चलते हैं। वही वैसे भी अब कोई क्लास नहीं है, आरफा ने कहते हुए खिलाई पर बंदी घड़ी में वक्त देखा, साथ ही बैग उठाकर खिड़की खड़ी हो गई। अभी इन दोनों का रुख यूनिक गेट की तरफ था। जल्दी जल्दी कदम उठाती यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अभी मजीद चंद कदम ही आगे चली थी कि तभी आसमान से पानी की बौछार हुई। शिट यार, तेजी से आगे बढ़ती वो सड़क किनारे दरख्त के नीचे जा खड़ी हुई थी। लजी जल्दी कोई सवारी मिल जाए, सर पर बैग किए बड़ा परेशानी से बोली, रात भर क्या किया, कम बारिश हुई थी जो अभी शुरू हो गई। हमेशा से बारिश को नापसंद करने वाली अरफा इस वक्त सख्त टेंशन झेली हुई थी। वो देखो, वो सामने से गाड़ी आ रही थी। वरे ने इसकी तवज्जो दूर से आती कार की तरफ कराई, जो तेजी से इसकी जाने बढ़ रही थी। अरफा ने फौरन लिफ्ट के लिए हाथ लाया, जिस पर वह श्याम मर्सिडीज सीधा इनके सामने आकर रुकी। कॉलेज से बाहर निकलते इसकी नजर सीधे श्याम मर्सिडीज पर पड़ी थी, जिसके साथ एक लगाए खड़ा शेर कब से इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराती हुई तेजी से इसकी जाने बढ़ी। आज कैसे आ गए आप? मौसम के थे और कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, सोचा खुद ही तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूं। रैनू के हाथ से बैग लेते हुए साथी वही अपने आने की वजह से बताई है तो अच्छा किया आपने। चलो आप जल्दी क्या दे मैं बैठो, बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंचना है।
जैनब को फ्रंट सीट पर बैठकर ज्यादा मन करता हुआ खुद ही ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ने गया और रास्ते में ही तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और दृश्य ड्राइविंग के साथ साथ जैनब की बातों की जवाब देने में भी मसरूफ था। जब इंसान सड़क पर तेज बारिश में भीगती हुई इन दो लड़कियों को दिखाई दी। भाई शायद इन्हें मदद की जरूरत है। इनमें से एक को हाथ हिलाते देखा जैनब ने कहा, यहाँ सबको मदद की जरूरत है जैनब, हम किसी के लिए नहीं रुक सकते। शायद जिद्दी से बोला, वो शायद रुकने का इरादा नहीं रखता था। और भाई कितनी तेज बारिश हो रही है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाजू पर हाथ रखते हुए जैनब ने इसे समझाना चाहा। साथ ही एक नजर सामने की तरफ डाली जहाँ वो दोनों खड़ी थी। जैनब के सराहट पर अर्धशेर ने मुझे कुछ भी कहे बगैर गाड़ी सीधा इन दोनों के सामने ले जाकर रोक दी। शुक्रिया। गाड़ी के रुकते ही अरफा और फौरन शेर की तरफ देख तरफ बढ़ी जो गाड़ी का शीशा नीचे गिर रहा था। अब भी सामने की तरफ देख रहा था जबकि पीछे खड़ी मुबर्रा इसे देखते ही ताकत रह गई थी। आसमान से बरसती बारिश चारपा कर शार से मदद तलब करना इसे किस चीज का होश नहीं था। वो तो इससे एक रात में पहुंच गई थी। इसने उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दी थी। चलो बड़ा कहाँ हो गई हो? हाँ क्या कर कहीं नहीं। अरफा की आवाज़ पर वो एकदम होश में आई मगर खुद हो गई थी। खुद को तकती अरफा की अजीब नजर से पहचानने पर मजबूर कर गई थी। तुम्हें बात कर ली मैंने, आ जाओ। यहाँ खड़े रहने का इरादा नहीं, चलो। सर झुकाए वो अरफा को साथ गाड़ी के पीछे नेस्ट पर बैठ गई थी। इन्हीं के बैठते ही उर्दू ने गाड़ी और सड़क के रास्ते पर डाल दी। बाकी का सारा सफर खामोशी से गुजरा। क्या इसने मुझे पहचाना नहीं? रात के 9 बजे स्टडी टेबल पर बैठी मुबर्रा असाइनमेंट पर तवज्जो देने के बजाय मुसलसल अर्धशेर के बारे में सोच रही थी। हॉस्टल वापस आने के बाद ही सही इसके सोच के सारे ताने बाने अर्धशेर से जा जुड़े थे। जो 4 साल पहले इसकी निस्बत काफी बार और संजीदा नजर आ रहा था मगर इससे एक निगाह गलत भी मुबर्रा पर नहीं डाली थी और ये बात ही इसे परेशान की जा रही थी। क्या मैं 4 साल में काफी बदल गई हूँ? इसने टेबल पर मौजूद आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा जिसकी खूबसूरती का कोई भी बर्दाश्त हो सकता नहीं। मैं तो अब भी वैसी हूँ। वो भी वैसे ही था। पर मुझे क्यों नहीं पहचाना? मैं तो इन्हें नहीं भूली तो क्या वो मुझे भूल गया? और खुद से बड़बड़ाती हुई इसे एक रात के बारे में सोचने लगी जब अर्दिशेर ने सबके सामने से कमरे में ले गया था। प्लीज अल्लाह चाहे मुझे इंसान से बचा ले। बेड पर बैठी 16 साल मुबर्रा खौफजदा नजरों से अर्दिशेर को देख रही थी और जो इधर उधर चक्कर लगाता न जाने क्या सोच रहा था कि कमरा लॉक करके मुबर्रा को बेड पर दिखने के बाद वो जैसे इसे भूल ही गया था। काफी देर तक यूं ही कमरे के चक्कर लगाते रहने के बाद शेर ने मुबर्रा को उठने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा और मुबर्रा हैरत जरा से इसी के पीछे जान चल पड़ी। जिसने कमरे में लॉक करके हाथ लगाना तो दूर एक नजर से देखा भी नहीं था और वो यही सब सोचती इसके पीछे चली रही थी जब एकदम से शेर मुड़ा और एक नेटे रहते पर इसकी गाल पर जड़ता और जमीन बोस कर गया। बड़ा आंसू बहाती गाल पर हाथ रखे इसे देख जा रही थी। आंखों में हैरत की जगह को अब खौफ ले थी। कपड़े फर्श पर गिरने के बाद तरतीब हो चुके थे और शेर एक थप्पड़ ने ही इसे हाथ बेहाल कर दिया था। यहाँ से बाहर निकलकर तुम सबको ये बताओगे कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, समझी? और इसने आंखें दिखाता हुआ बोला जिस पर मुबर्रा ने रोते हुए फौरन इस बात में कर लाया था। इसके बाद शेर तो वहां से निकल गया मगर अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ गया था। तहमत, इज्जत, अकीदत। शेर का नाम कभी तहमत लिए बड़ा इसके साथ अकीदत जैसे साथी बन गई थी। एक कमरे में वक्त गुजारने के बावजूद इसकी इज्जत में महफूज थी। ये बात शेर और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता था। नाम वो चाहती थी कि कोई जाने। वो हमेशा इसके नाम तहमत के साथ रहना चाहती थी जिसके पर इल्जाम था इसकी इज्जत के लूटने का। जिससे इसे अकीदत थी इसकी इज्जत को महफूज रखने की और जिसे इसे मोहब्बत। इसने धीरे से दोहराया, नहीं मुझे अर्दिशेर से मोहब्बत नहीं है। वो इनकारी हुई इससे बात से बेखबर कि वो तो इसे एक रात असीर हो चुकी थी। इन 4 सालों में वो एक रात में ही कहीं कैद हो चुकी थी। रात के दूसरे पैर अपने कमरे में लेटा वो कब से बस खराटों पर कराटे बदल रहा था, करवटों पर कवटे बदल रहा था। पर ये अंदर का गुबार था कि तुमने मैंने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 साल, पूरे 4 साल बाद इसने वो चेहरा देखा था जिसे देखते ही इसके अंदर नफरत की जिंगार भड़क उठी थी। इसने किस तरह खौफ को काबू कह रही है बस शेर ही जानता था। अपनी बहन के साथ वो जाती आज तक भूला ही ना था, नहीं था और ना ही बोलने का इरादा रखता था। दुआ करना फिर कभी हमारा सामना ना हो वरना अब की बार मैं क्या कर जाऊँ। मैं खुद भी
نہیں جاننا 4 سال سے کئی پہ وقت کے جذبات کے زیر اثر وہ حقارت سے سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر سوچنے کی کوشش کرنے لگا، اس بات سے بالخبر کہ انسان کے وقتی جذبات تو اس کے پانی کے بلبلے کی طرح ہوتے ہیں جو ذرا سے چھونے پر بھی اپنے نام نشان تک کھود دیتے ہیں۔ چھٹی کے بعد سیرے اپنے بیٹے کی عمر کے ساتھ آج صبح ہی سراج الدین طرف چلی آئی تھی۔ صبح بڑے اکٹھے جمع تھے جس پر چائے کا انتظار لون میں کر دیا تھا، اور اب تینوں چائے پیتے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف تھے جب موقع دیکھ کر حسین زینب کے نکاح کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے پیشہ اور اس شیر کے رشتے کا بھی ذکر چھڑا تھا۔ رشیدہ بھابی، میں چاہتی ہوں زینب اور عمر کے نکاح کے ساتھ رشید اور فلیشہ کا بھی نکاح کر دیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ شیر کو اپنا داماد بنا۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، مگر آسیہ زینب ابھی پڑھ رہی ہے اور شیر مجھے اسے بھی رشتے کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ رشیدہ بیگم نے کہتے ہوئے ایک نظر سراج الدین پر ڈالی جو ان دونوں کو نظر انداز کیے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ وٹے سٹے کے قائل نہیں تھے، مگر نند کو بیٹے کے رشتے کے لیے انکار کرنے کا مطلب تھا زینب کے رشتے سے بھی ہاتھ دھو لینا، جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ زینب کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بعد ان کی نند بھتیجی کو بہو کی طرف اپنا رہی تھی، یہ بات ہی رشیدہ بیگم کا سر آسیہ کے سامنے جھکانے کے لیے کافی تھی۔ ہاں، آپ سے بھی بات کر لیں، مجھے پورا یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اور رہی زینب کی پڑھائی، تو اس سے نکاح کر رہے، اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھ لیں گے۔ آپ کہتے ہیں بھائی؟ آسیہ نے سراج الدین کو بھی بیچ میں گھسیٹا۔ میں بھائی راضی ہوں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سراج الدین اخبار کا صفحہ پلٹتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کو یہی مرضی ہے تو میں ارد شیر سے بات کرتی ہوں۔ رشیدہ بیگم دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ اماں کی طبیعت تو ویسے ہی ٹھیک۔ اماں کی طبیعت تو ویسے کی ویسے ہی ہے، آپ شہر میں کسی ڈاکٹر کو کیوں نہیں دکھا دیتے؟ چھٹی کے بعد مبرہ اماں ابا سے ملنے گاؤں چلی آئی تھی اور اب کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اور پریشان سی ماں کو دیکھ رہی تھی جو اکلوتے بیٹے کی موت کے غم میں بستر سے ہی لگ کر رہ گئی تھی۔ 8 ماہ پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی شہروز شیخ کی موت کا صدمہ اتنا گہرا تھا کہ اب وہ اکثر ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ کچھ بیٹیوں کا دکھ تھا، بیٹی کا دکھ تھا، 20 سال کے ہونے کے باوجود کسی نے رشتے کے لیے ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ ارشد کے نام کی لگی تہمت کسی کو بھی اس گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دیتی تھی۔ کچھ گاؤں والوں کی باتیں بھی تھیں جن سے کافی عرصہ پہلے دل برداشت ہو کر وجاہت شیخ نے اسے پڑھنے کے لیے لاہور بھیج دیا تھا۔ خیر کے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، تاخیر سے آواز میں کہتی ندرت شیخ بیٹی کو دیکھنے لگی جو گلابی رنگ کے شلوار قمیض میں خود بھی کوئی کھلتا ہوا گلاب لگ رہی تھی، مگر اس کا نصیب تو شاید مرجھایا سا گیا تھا۔ اٹھ تو جاؤ، نہ رہا آپ سے خاک، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نا میں ٹھیک ہوں، کہیں نہیں جانا مجھے۔ اور اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے بولے، اچھا ٹھیک ہے، غصہ نہیں کریں، ویسے گھر میں کچھ کھانے کو میں صبح سے ناشتہ کیا تھا جو سفر میں ہی ہضم ہو گیا۔ مبرہ نے مسمیت سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، میں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں۔ میں ابھی نہیں، میں آپ رہنے دیں، میں بناتی ہوں، آپ آرام کریں۔ ندرت شیخ کو منع کرتے وہ تیز سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تاکہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ سکے، ورنہ وہ جانتی تھی اس کی ماں بیماری میں بھی اٹھ کر اس کے لیے کچھ نہ کچن میں گھس جاتی ہیں۔ خان والا میں اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کے کھانے میں مصروف تھے جب شاہد خان نے آسیہ کو مخاطب کیا۔ آج سراج الدین کی طرف گئی تھی، کیا ہوا؟ باپ کی بات پر عمر نے بھی سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ میں نے بھائی بھابھی سے بات کی تھی کہ رشید اور فلیشہ کے نکاح کی، بھائی کو تو اعتراض نہیں ہے، آسیہ نے کہتے ہوئے ایک نظر فلیشہ پر ڈالی جس کا نوالا منہ تک لہجہ ہاتھ میں ہوا میں
और शीदा भाभी को तो कोई एतराज नहीं, शायद भाई ही खाने से हाथ रोककर अब आसिया की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो हो चुके। इन्होंने कहा है इरशाद इर्द शेर से बात करके मुझे कुछ दिनों तक जवाब देती हैं और मुझे उम्मीद है इरशाद शेर निकाह नहीं करेगा। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से इसे अपने और ज़ैनब के निकाह का पता चला था इसकी मुस्कुराहट थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर को इसकी मोहब्बत जो इससे सामने इससे मिलने वाली थी। चलो तुम कहते हो तो मान लेते हैं, वैसे हमें भी लगता है इर्द शेर निकाह नहीं करेगा और वह एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का है। मुस्कुराकर कहते हुए शहद खान वापस खाने की तरह मुतवज्जो हुआ। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आसिया ने एक बार फिर अलबाशा की तरफ देखा जो खामोशी से खाना खत्म करके अपने अब उठ खड़ी होनी थी। मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे असाइनमेंट बनाना है। अपनी बात मुकम्मल करके वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इसके जाते ही आसिया ने पहले एक नजर शाद खान और फिर उमर की तरफ देखा, जिन्होंने इसके जाने पर कोई नोट्स नहीं लिया था। अपनी छुट्टियां गाँव में अम्मा बा के साथ गुजार कर मुबर्रा वो वापस हॉस्पिटल चली आई थी और अब लाहौर के बाजार की खाकर शांति को कुछ जरूरत का सामान खरीद रही थी। अरफा के सर दर्द के बाद वो अकेली ही चली आई थी। सारा सामान हो गया और न जाने क्या लाने को कहा था। अरफा ने वो हाथों में मौजूद टेस्ट देखती हुई बड़बड़ाती साथ ही बैग से मोबाइल निकालकर आशा को काल मिलाने पर आगे से मोबाइल बंद जा रहा था। ये भी ना मोबाइल ऑफ करके खुद गधे घोड़े बेचकर सो रही होगी। गुस्से से मोबाइल को घुरते हुए इसे वापस बैग में रखा और सामने से सामान से भरे 2-3 चौपर तो उठाकर शॉप से बाहर निकल गई। शॉप से बाहर निकल गई। अब वो सड़क पर चलती किसी रिक्शे या टैक्सी की तलाश में थी। आज ही सबको गायब होना था कि रिक्शा टैक्सी नजर नहीं आ रही थी। सड़क पर नजर दौड़ाते हुए मुबर्रा ने खौफ से सोचा वो बस जल्दी से जल्दी हॉस्टल पहुंचाना चाहती थी। अगर इसे खास जरूरत ना होती तो वह कभी यूं अकेले बाजार ना आती। बेचारी थक गई। क्या हुआ मैडम, हाथ में दर्द हो रहा है तो हम मदद कर दें। वापस करने में वहां से गुजरते हुए 2-3 मनचले नौजवान इसे देखते ही आवाजें कसने लगे तो मुबर्रा इन्हें नजरअंदाज करके अपने गले लिपटी साड़ों को मजीद ठीक करने लगी। गुलाबी आंखें जो तेरी। इससे पहले इनमें से एक मजीद बकवास जारी रखता पीछे से पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे बोलती बंद कर दी। वो गाल पर हाथ रखे पीछे मुड़ा जहाँ अर्धशेर खड़ा गुस्से से इन्हें घूर रहा था। बहुत शौक है सड़क पर चलती लड़कियों को छेड़ने का। अभी वो मजीद इस लड़के को थप्पड़ जब तक किसी अर्धशेर को खतरनाक तिवड़ी देखकर वो लड़के फौरन वहां से भाग गए। वैसे भी वो नौजवान लड़के इससे लंबे चौड़े मर्द का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इनके रहते शेर ने अपना रुख मुबर्रा की जानब किया। तुम्हें बहुत शौक है इज्जत को हाथ में लिए घूमने का जी। मुबर्रा ने नासमझी से इसे देखा। वाकई शेर की बात का मतलब समझने से कासर थी। अपनी इज्जत प्यारी नहीं है शायद तुम्हें, इसलिए अब सड़कों पर निकल आई हो। अपने अंदर मौजूद नफरत वो लफ्जों के जरिए बाहर निकाल रहा था। मुबर्रा कई लम्हे इसे गहन से हालत में देखती रही। जब बोली तो आवाज में लर्जत थी। मैं बस जरूरत के तहत बाहर निकली थी, शौक से नहीं। बैठो गाड़ी में, इससे पहले वाकई इज्जत कर जहाँ निकल जाए तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूँ। कटले लहजे में कहता वो अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा। मुबर्रा खामोशी से इसके पीछे चल दी। आज फिर वो इसके हिफाजत के लिए मौजूद था। गैर होने के बावजूद ही अर्ध शेर का साथ ही महफूज करता था। यही बात इस गिरद शेर से वाबस्ता कीदत को मजीद बढ़ा देती थी। शुक्र है हॉस्टल से कुछ फासले पर गाड़ी रुकते ही वो इसका शुक्रिया अदा करने लगी। अर्धशेर ने यूं निगाहें इस पर डाली कि ठहर सा गया। मुबर्रा की बोलती आंखों कुछ अलग ही दास्तां बयान कर रही थी। इनमें करती चमक। अर्धशेर ने फौरन अपनी गाह पहले जब बोला तो लहजा सख्ती के लिए हुआ था। जाओ जल्दी जी। मुबर्रा फौरन गाड़ी से उतरकर हॉस्टल की जानिब बढ़ी। शेर इसे ही देख रहा था जब तक वो अंदर ना चली गई। मुझे क्या जरूरत थी इसकी मदद करने की। सर झटक गाड़ी स्टार्ट करता वो घर की तरफ रवाना हो गया। आज सड़क से गुजरते वक्त इन लड़कों का मुबर्रा को तंग करते हुए देखना होना चाहते हुए मैं इसकी मदद को चला आया था। अच्छा हुआ तुम आ गए, अभी मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी। मुबर्रा को रूम में दाखिल होते हुए देखकर अरफा जल्दी से उठकर इसकी तरफ बढ़ी ताकि शपर्द ले सके। हाँ वो उसे वापसी में कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो देर हो गई। आशा बाद में कहती वो शपर्द अरफा को पकड़कर बेड पर जा बैठी। सोचा कि सारे ताने बाने शेर से जड़े थे। इस गिर्द मौजूद
दिल के दिल का इतना गहरा असर था कि बड़ा इसके लफ्ज़ों की तेज़ी को सिरे से फरामोश कर चुकी थी। कुछ अगर याद था तो वो ये शेर एक बार फिर इसकी इज़्ज़त की हिफाज़त की थी और सबसे बढ़कर वो इसे याद थी। यही बात इससे सरशर करने के लिए काफ़ी थी। क्या हुआ मैडम? अकेले-अकेले मुस्कुरा रही हो, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? आसमां से देखते हुए मैंने खेज लहजे में बोली, जिस पर अम्बर्रा की मुस्कुराहट कुछ मजीद गहरी हुई और वहीं आरफा की दोनों आंखें फैल गई। जगदीश शेर घर में राहुल हुआ तो सामने ही सारम पर बैठा मोबाइल में सर झुकाए मसरूफ नजर आया था। अम्मा कहाँ है? पड़ोस में गई है। मोबाइल में झुक के ही जवाब आया, ओके पानी में ले आओ। मेरे लिए शेर हुक्म देता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, क्योंकि सारा आंखों को पूरा खोले इसकी उसको घूरते हुए पीछे से चिल्लाया, ये मेरा काम नहीं है, 5 मिनट में पानी लेकर आओ, कमरे में मौजूद हो। हृदय शेर भी इसके अंदाज में कहता अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गया और अपने जूते उतार रहा था। आज फिर वो मेरे सामने थी। बड़ा को हॉस्टल छोड़ने के बाद से वो मुसलसल इसे ही सोच रहा था। ज़हन बुरी तरह जल चुका था। जितने मैं चाह रहा था इससे सामने ना आ, उतना ही इमेज सामने आ रही है। इसने सोचते हुए अपने बालों में हाथ फेरा। मुझे भी क्या ज़रूरत थी इसकी मदद करने की? कहीं मोहतरम की खुशी फहमी फहमी का शिकार ना हो जाए। और शेर को इसकी आंखें याद आई, जिनमें से फेंकने की चमक उतर आई थी। मेरा वहम भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इसने खुद को जितला और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। इसे बात से अनजान के मोहब्बत या नफरत जैसे जज्बात से वाबस्ता शख्स को इंसान से हमेशा अपने ज़हन पर बात रखता है। न चाहते हुए भी ऋषि ने बड़ा को ही सोच रहा था। बस एक के बाद एक क्लास लेने के बाद अब वो दोनों बातें करती कैंटीन की तरफ जा रही थी, जब सामने से आती पलवशिया की पुकार पर रुककर इससे देखने लगी। बड़ा, मुझे तुमसे काम था। वन के सामने आकर बोली, हाँ बोलो क्या हुआ? सर पर मौजूद दुपट्टा ठीक करते हुए इसने पूछा। यार सर वासफ ने जो जो टॉपिक समझाया था, क्या वो तो मुझे समझा सकती हो? मेरी क्लास में हो गई थी। और उम्मीद भरी नजर से बड़ा को देखने लगी। इतनी सी बात है, मैं समझा दूंगी। बड़ा मुस्कुराते हुए बोले, थैंक यू सो मच, मैं काफी परेशान हो गई थी। चलो कैंटीन में चलकर बैठते हैं। इन दोनों को वहीं जब मैं देखा अल्फा ने मुदखलत की, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो। मुस्कुरा कर कहती हूँ। बड़ा इन दोनों के साथ कैंटीन की तरफ चल पड़ी। कुछ देर वहाँ बैठकर किया खाने पीने और बातों के दौरान इनका इरादा प्रवक्ता के घर जाने का हो गया था। अरे मेरा शेर आया। आसिया लॉन्च में बैठी इस वक्त टीवी पर चलता ड्रामा देख रही थी, जब सामने से आकर शेर को देखते ही खुल उठी। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। वालेकुम सलाम, कैसे हो? आसिया ने खड़े होकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? इनका हाल पूछने शेर इनके साथ ही सफर पर बैठ गया। मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ आज यहाँ का रुख कैसे कर लिया? यकीनन अमूरत से कोई काम होगा। आसिया की बात पर शेर अपनी मुस्कुराहट छुपाने के नाकाम कोशिश करने लगा। वाकई अमृत से काम के सिलसिले में मिलने आया था जी वो। इससे पहले वो अपने आने की वजह बताता। प्रवासी अरफा और अम्बर्रा के साथ घर में दाखिल हुई। मम्मा, ये मेरी क्लास फेलोज है। अरफा और अम्बर्रा सलाम दुआ के बाद रोशन का तरफ कराने लगे। अरफा फौरन आगे बढ़कर आशिक के गले मिली, जबकि अम्बर्रा वो तो आशिक के साथ मौजूद इससे शेर को देखते ही ताकत हो गई थी कि ऐसे अजीब इत्तेफाक था। मिसमत इन्हें बार बार एक दूसरे के सामने ले आती थी। बार पर वो चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जो, क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और खुद को संभालती आगे बढ़कर आसिया से मिली। इनसे मिलो, ये दृश्य है मेरे भतीजे। आसिया मुस्कुराकर दृश्य की तरफ करवाने लगी। जी इनसे तो हम मिल चुके हैं, अरपा ने कहते हुए इनकी आंखों से बड़ा को देखा, जो कभी अपने बाल ठीक करती तो कभी दुपट्टा। वाकई पहले मिल चुका हूँ। अरफा की बात पर आसिया और प्रवेशिया के पहले से फिर उद्देश्य को देखकर बाजार तक मुस्कुरा था, जो जल्दी जल्दी मंजर से हट जाना चाहता था। इस लड़की की मौजूदगी से इससे बेचैनी मुतला कर रही थी, जिन्हें इन्हें बस लिफ्ट दी थी। वाह, ये तो अच्छी बात है। फिर पप्पू, मुझे बड़े से काम था, मैं जरा इससे मिल लूँ। इनमें इनकी न खत्म होने से वाली बातें चंगाकर दशहरा में कर के हाँ तो अपने कमरे में है। आशिक के बनाया बताते पर बस बात में सरलता फौरन अमर के कमरे की तरफ बढ़ गया। इधर मुबारक इधर गिद का बुलाए इसे जाते हुए देख रही थी, जब मुमना ने कनी मारकर तनबिया करती नजर से घूरा। आओ कमरे में चलकर बातें करते हैं। वह वहाँ तो तुम्हें मुझे टॉपिक समझा देना।
البتہ ان دونوں کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ آسیہ کچن کی طرف چل پڑی تھی تاکہ کچن میں مہمان نوازی کر سکے۔ ہاسٹل واپس آ کر وہ دونوں اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ باقی سارا وقت اسائنمنٹ کی تیاری میں گزر گیا۔ وہ اتنی تھک چکی تھی کہ بس آرام کرنا چاہتی تھی۔ برا ایک بات پوچھوں؟ عرفا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو تکیہ درست کرتی اور سننے کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ پوچھو اردو شعر میں ایسا کیا ہے کہ اس کے سامنے آتے ہی تم اس کا ہوش ملا دیتی ہوں؟ برا اسے اردو شعر کے بارے میں جاننے اور آج کی ملاقات کے بارے میں پوچھنے بنا رہ نہ سکی۔ گو کہ برا نے زینب سے جاتی اور پنچایت کے فیصلے کے بارے میں اسے کچھ نہ بتایا تھا، سوائے اس کے کہ اردو شعر اور وہ ایک ہی گاؤں سے ہیں۔ برا اس سے پہلے ملاقات میں محبت کا شکار ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ سمجھ کر بھی انجان بنی۔ میرا مطلب کہ یار تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی لڑکا تمہارا دیوانہ نہ ہو جائے، اور پھر تمہیں اردو شعر میں ایسا کیا پسند آ گیا؟ حالانکہ وہ عام سی شکل اور صورت کا مالک ہے اور اپنے میرا مطلب یار تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی لڑکا تمہارا دیوانہ ہو جائے، پھر تم اردو شعر میں ایسا کیا پسند آ گیا؟ حالانکہ وہ ہم سے صورت کا مالک ہے۔ عرفا نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا مبرہ خاموشی سے عرفا کو تکنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ ارشاد کے چہرے کی نہیں بلکہ اس کے کردار کی اسیر ہے، جس نے گناہ کی اجازت ملنے کے بعد بھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ارشاد وہ باقی مردوں کی طرح چہرے پر میں مٹنے والا نہیں تھا، وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اتنی نفرت کہ اپنی نظروں کے سامنے اس چہرے کو تکنا تک گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گئی؟ اس کی خاموشی پر عرفا نے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس تم سمجھ سکتی ہو، مجھے ارد شیر کے چہرے سے نہیں، ان کے کردار سے محبت ہے۔ ان کا ساتھ مجھے ترس دیتا ہے۔ اگر میں کسی مرد کی موجودگی میں خود کو محافظ سمجھ سکتی ہوں تو وہ صرف ارد شیر ہے۔ وہ غیر مرئی نقطے کو کرتے اس ایک رات میں پہنچ چکی تھی جہاں وہ اور ارد شیر تھے۔ اس کے ساتھ گزرا ہر لمحہ مبرہ کے لیے کسی قیمتی اثاثے سے کم نہیں تھا۔ جو بھی ہے وہ آخر ایک مرد ہی ہے۔ مبرہ کے جواب پر آنکھیں گھماتی ہوئے اٹھ کر واپس اپنے بیڈ پر چلی گئی تھی، مگر جاتے جاتے بھی اس نے مبرہ کو جتانا ضروری سمجھا۔ یہ ہاں مرد ہے، باقی مردوں سے الگ ہے۔ مبرہ دھیرے سے بڑبڑائی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر بیٹھا وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے اپنی ای میلز چیک کر رہا تھا، جب دروازے پر دستک دے کر رشیدہ بیگم اندر آئی۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جی بولیے، کیا بات ہے؟ کیا آج تمہارے پھپھو نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان سے پہلے کوئی اور ارد سے اس بارے میں بات کریں۔ نہیں تو کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی تھی؟ میر شیر نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور پورا کا پورا رشیدہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں بتایا تھا تمہاری پھپھو آئی تھی زینب کے نکاح کی بات کریں؟ ہاں، تمہیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ عمر سے بات ہوئی تھی، وہ بھی صرف نکاح کے لیے کہہ رہا ہے۔ ماں کی بات پر وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ یہ مسئلہ نہیں ہے پھر؟ رشیدہ بیگم نے گہرا سانس لیتے ہوئے شیر کی طرف دیکھا۔ وہ آسیہ پلوشا کا نکاح تو تم سے کرنا چاہتی ہے، لیکن دیکھو ارشاد، تم جانتے ہو زینب کی عمر کا رشتہ کتنا ضروری ہے، اور تمہارے بابا سائیں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، اس لیے انکار کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ اس سے پہلے شیر کچھ کہتا وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر بابا سائیں اور آپ راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ پھپھو کو ہاں کر دیں۔ اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا جو انکار کی وجہ بنتا۔ ویسے بھی وہ اپنی بہن کی خوشیوں کا اتنا تو تو کر ہی سکتا تھا، اتنا تو کر ہی سکتا۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں کل ہی آسیہ سے کہہ دوں کہ وہ زینب کے ساتھ پروشے کے نکاح کی بھی تیاری کر لے۔ رشیدہ بیگم اس کا ماتھا چومتی ہوئی بولی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کی جاتے ہی ارشاد واپس لیپ ٹاپ لے کر اپنے آفس کا کام کرنے لگا، جب اچانک مبرہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آیا۔ اس نے فوراً اس کے خیال کو جھٹک دیا۔ اگلے صبح ہی رشیدہ بیگم نے آسیہ کو فون کر کے ارد شیر ارد شیر اور رشک نکاح کے لیے ہاں کر دی، جس سے دونوں گھروں میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ہر کوئی اس رشتے کو لے کر بہت خوش تھا۔ آنے والے کچھ دنوں میں ہی دونوں گھر میں نکاح
की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ मुबर्रा निडरत शेख की तबीयत मजीद बिगड़ने के बाद गाँव चली आई थी ताकि कुछ दिन अम्मा अब्बा के साथ गुजार कर इनकी खिदमत कर सके। यूनिवर्सिटी से इसने छुट्टियां ली हुई थी, वैसे भी असाइनमेंट वगैरह में मदद के लिए अरफा मौजूद थी। अम्मा आप आराम करें, मैं ज़रा किचन देख लूँ। दूसरे शेख को दो दो दवाइयाँ देने के बाद वो बेड पर लेटते हुए बोली, मुबर्रा बेटा अब मैं ठीक हूँ, अब तुम वापस लाओ और चले जाओ। हमारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है, कोई हर्ज नहीं हो रहा। हमारा अल्फा है मेरी मदद के लिए, आप परेशान न हो। इसे झुक कर इनके माथे पर प्यार किया और फिर कमरे से निकलकर किचन की जानिब बढ़ने लगी कि दफ्तन बैरून दरवाजे की बेल बजी। मुबर्रा ने अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाई। जी कौन? सामने खड़े लड़के को देखते हुए इसने पूछा। ये वजाहत शेख के नाम डाक आई है। खाक लिफाफा मुबर्रा की तरफ बढ़ाते हुए इसने कहा, जैसे इसने फिक्र एक साथ थाम लिया था। लड़के को फारिग करके वो दरवाजे बंद करती वापस कमरे की तरफ बढ़ी। खाक लिफाफा अम्मा को दे सके। अब्बे के लिए किसने भेजा है? जहन में उसका सवाल सवाल खोलकर ऐसे लिफाफे को खोलकर देखने पर मजबूर कर रहे थे। क्या हो सकता है इसमें? क्या मैं खोल कर देख लूँ? हाँ, देख लेती हूँ। हाँ, अब्बा ने कौन तो कुछ कहने अपने ससुर के हाथ मजबूर होती वो वहीं रुककर लिफाफा खोलने लगी। जब अंदर से निकालते शादी के कार्ड ने इसके पैरों तले से जमीन खींच ली। जलील इंसान मुझे नीचा दिखाने के लिए इसने ये कार्ड भेजा है, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। वो झट शेख चले पैरों की बिल्ली की तरह कमरे में चक्कर काट रहे थे। जब हाथ में मौजूद कार्ड को पहनते हुए बोले, इनका गुस्से से बुरा हाल था। सिराजुद्दीन ने कहा कि तकरीब गांव में रखी थी, जब इसने वजाहत शेख की फैमिली को भी मुद्दा किया था। वो जानते थे सिराजुद्दीन ने जिल्लत पे नमक छिड़कने की कोशिश की थी। तब भी जब भी रोज शेख की मौत हुई थी, गांव में न रहते हुए भी वो यहाँ की सारी सरगर्मी से वाकिफ थे। मेहरबानी करके मुझ पर रहम करें, मेरे पास एक बेटी ही है जिसे अब मुझे खोने की हिम्मत नहीं है। निडरत शेख बेड पर बैठी दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली। इन्हें डर था कि अगर वजाहत शेख ने गुस्से में आकर सिराजुद्दीन को जाने नुकसान पहुंचा दिया तो अब और इनकी बेटी को नहीं होने से कोई नहीं पहुंचा सकता है ना। वो क्या समझते हैं हमें? इनकी बच्चों की शादी से कोई फर्क पड़ता है? नहीं है, हम जानेंगे, हम सब जाएंगे ताकि इससे पता चल सके वो इश्तिहार शेख को तोड़ना इतना आसान नहीं। अपनी बात मुकम्मल करके वो कमरे से बाहर निकल चुका था। निद्रा शेख ने बेटी की तरफ देखा जो खड़ी खिड़की के पास खामोशी से सर झुका बैठी अपने हाथों की लकीरों में न जाने क्या ढूंढ रही थी। इस खबर के मिलने के बाद जिससे चुप लग गई थी। तो दिन मजीद अम्मा अब्बा के साथ गुजार कर वो वापस हॉस्टल चली आई थी, जहाँ अरफा इसका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। इसे भी तलाशी और साथ की निकाह की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद इससे मुबर्रा की फिक्र होने लगी थी। इसलिए इसने मुबर्रा से बात करने का सोचा और अब वो इसके सामने बैठी मुसलसल इसे समझाने की कोशिश कर रही थी। देखो मुबर्रा, मोहब्बत वगैरह सब बेकार है। देखना, जब तुम्हारी शादी होगी, चाहने वाले शोर मिलेगा तो तब तुम्हें इर्शाद याद भी नहीं रहेगा। और वो इसके हाथों पर दबाव डालते हुए बोली, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं किसी समझाऊं अपने दिल को। इसके रोने में मजीद शिद्दत आ गई और जब इसे आई थी बस रोई जा रही थी। मुबर्रा मेरी जान, हमेशा याद रखो ये दुनिया और इस दुनिया की हर चीज़ वक्ती है। अतः कि इंसान के जज्बात में मुस्तकबिल में तुम्हें ये मोहब्बत समाकत से कम नहीं लगेगी। नहीं हड़पा, तुमने मोहब्बत नहीं की इसलिए तुम्हें ये सब कह सकती हो, लेकिन मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो बार बार खेला जाए। ये बस एक बार होती है और अगर ना मिले तो सारी जिंदगी का रोग भी बन जाती है। फिर चाह कर भी इंसान किसी और से मोहब्बत नहीं कर पाता। भरत तो इशाद को भूलने की बात पर ही तड़प उठी थी। अल्फा नफी में सहलाते हुए उठ खड़ी हुई थी और इसे समझाते समझाते अब तक इंसान सारे शौक पाले लेकिन मोहब्बत का रोग न पाले। जोर से बड़बड़ाती हुई वो आश्रम चली गई। इसके जाते ही मुबर्रा के रोने में मजीद दरवानी आ गई थी। अब मैं बस भी कर दो मुबर्रा, कब तक यूं खामोश रहना है? आज सारा वक्त सबको तुम्हारी तबीयत खराब होने का झूठ बोल कर थक गई हूँ मैं तो। हर वक्त कोई पूछ रहा था तुम इतनी खामोश क्यों हो? इसके साथ को फ्रेडो से गुजरते हुए अरफा चिढ़कर बोली, तो तुम सब किसने कहा था झूठ बोलने को? मुबर्रा ने भी इसके अंदाज में कहा। निकाह की खबर के बाद जब ऐसी चिड़चिड़ी हो गई थी, ज्यादा तक खामोश रहती और जब बोलती तो काट खाने को दौड़ते। हाँ तो क्या सच बता देती कि तुम कभी हो जाओ? सामने पुलवाइशा खड़ी है। मुबर्रा इसकी बात काटती तेजी से बोली, साथ ही पुलवाइशा की तरफ देखा जो किसी लड़के के साथ कई बातें कर रही थी। इनके करीब जाते ही वो लड़का फौरन वहाँ से चला गया। कैसी है पुलवाइशा? बहुत बहुत मारो को तुम्हें निकाह की थैंक्स
अलविदा सजीद से बोली। इसके निकाह की खबर सारे डिपार्टमेंट को मिल चुकी थी, मगर हैरत की बात यह थी कि इसने किसी को भी मुआज़त कर ली मुआज़त कर ली थी कि निकाह साथ किसी और है, जबकि मुबर्रा जानती थी कि निकाह की तकरीब कितनी धूमधाम से रखी गई थी। गाँव की तकरीब में अरफात के मुद्दा किए गए थे, मगर अपने घर में मुबर्रा ने इस तरह तवज्जो न दी। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं चलती। एक दो और बातों के बाद रशिया कहती फौरन वहाँ से निकल गई। वैसे भी यूनिक का टाइम ऑफ होने लगा, तो तुम दरवाजे तक चलो, मैं जरा लाइब्रेरी से हूँ। और पर घड़ी में वक्त देखते हुए अजलत से बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, तुम गेट पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आई। अरफा कहते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई, जबकि मुबर्रा ने अपने कदम मेन गेट के जाने बढ़ा दिए। वहाँ पहुंचते ही इसके सामने गाड़ी से टेक लगाए साथ खड़ा नजर आया, जो यकीनन तो रशिया पिक करने आया था। मुबर्रा के कदम बेख्तियार इसकी जाने बढ़े। कैसे आप? वो इससे पूछना चाहती थी कि इससे किस बात की सजा दी जा रही है। क्या क्या रोज शेख की बहन होना इसका कसूर था? ये मोहब्बत करना? सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बन रहा था। मगर कुछ भी पूछने से पहले इसने पूछा, क्यों तुम? अरशद, जो इससे सख्त नाट्य का इरादा रख रहा था, मुबर्रा की तरफ देखते ही सख्त हो गया। क्या कुछ नहीं था? इसकी आंखों में इश्क, अकीदत, मोहब्बत। अपने नाम की कमर लगाकर वो खुद किसी और से शादी कर रहा था। क्यों इतनी नफरत? अब तो शहरोज शेख इस दुनिया में नहीं था, इसकी बहन का घर भी इसमें बसने जा रहा था। फिर मुबर्रा को क्यों तामर की सजा सुनाई दी गई थी? अरशद इर्द शहर को इस वक्त अपनी नफरत बेमहनी में मस्ती लगने लगी थी। मुबर्रा चलिए, पीछे से आती आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जहाँ अरफा खड़ी सजीद की सीने देख रही थी। हाँ चलो। और इससे मुबर्रा को हर लफ्ज़ बेमैनी लगने लगा था। वक्त गुजर चुका था, वो किसी और का होने जा रहा था। मुबर्रा खुशी से अरफा के साथ आगे बढ़ गई और इर्द शहर को वहीं खड़ा इसे जाता देखता रहा, जब तक वह नजर से ओझल नहीं हो गई। निकाह से कबल कई बार इसे वजाहत शेख की कॉल आ चुकी थी, जिन्होंने इसे खास तईद की थी कि निकाह में शरीक होने की। ये अब इनकी अना का मसला बन चुका था। वो सिराजुद्दीन पर वाज़ेह कर देना चाहते थे कि इन्हें इनकी खुशियों से कोई खास सरोकार नहीं। वो दूसरी तरफ मुबर्रा ने खुद को समझा लिया था कि ये मोहब्बत इनका अपना मसला है, इर्द शेर का इसमें कोई कसूर नहीं। वो तो इसे नफरत करता था, इसने कभी इसे कोई उम्मीद नहीं दिलाई थी। एक कैसा इश्क और कैसी शिकायत। वो गाँव के लिए रवाना हो चुकी थी। इससे बस इतना फ़र्क था, इस बार इसके साथ अरफा मौजूद थी, जो इसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। क्या ज़रूरी है निकाह में शिरकत करना? घर पहुंचकर मुबर्रा के अम्मा अब्बा से मिलने के बाद वह सफ़र की थकान उतारने के लिए कमरे में आराम कर रही थी, जब अरफा इसकी तरफ करवट लेते हुए बोली, हाँ बाबा सही चाहते हैं, हम चाहें और हम इन्हें इनकार नहीं कर सकते। मुबर्रा उठकर बैठ गई। बेचैनी इतनी थी कि दोनों दो घड़ी भी आराम नहीं कर पाई थी। मुबर्रा, सब्र करो, देखना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगा जो तुमसे इतनी मोहब्बत करेगा कि तुम मजबूर हो जाओगी इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के लिए। और तब शेर, अगर तुम्हें याद भी आ रहा हो तो इससे मोहब्बत नम तोड़ चुकी होगी। अरफा एक बार फिर इससे समझा रही थी। मुबर्रा ने इस बात से मैं सर हिला दिया। ठीक ही तो कह रही थी। और दुनिया के हर चीज़ का इनाम बदल निकल आता है, इंसान बदल जाते हैं, तो ये बात वही क्या कैसे रह सकते हैं? तुम ठीक कह रही हो, शायद एक दिन मैं शेर को तुम भूल जाऊं, तब कोई और यहाँ तो वो अटक गई। कोई और क्यों? शेर क्यों नहीं? इसका जब जवाब देने लगा, इससे पहले वो एक बार फिर भी कर जाती। तेजी से उठकर वॉशरूम में चली गई। पीछे अरफा अफसोस करती इसके हक में दुआ करने लगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो अपना शेरवानी के बटन बंद कर रहा था, जब उसने एक नज़र आईने पर डालकर अपनी तैयारी का जायजा लिया। ब्लैक शेरवानी इस पर खूब जच रही थी। इसके चेहरे की संजीदगी और अब इसके मर्दाना वजह में मजीद पहचान लगा रहे थे। खुद को आईने में देखता वो हाथ में घड़ी पहनने लगा। अचानक मुबर्रा का चेहरा इसकी नज़रों के सामने लहराया। मेरा कसूर नहीं है, मैंने इसे कोई इशारा नहीं दिया। इर्तिशा ने खुद को बार बार करवाया। वो कई बार खुद से ये कह चुका था कि मुबर्रा के लिए भी इसे दुख हो रहा था, पर ये भी सोच सच था, वो कसूरवार तो वार तो नहीं था। मुबर्रा की मोहब्बत को वो अपना नहीं सकता था एक का दिल रखने के लिए, और वो सबके दिल नहीं तोड़ सकता था। वो जानता था सिराजुद्दीन कभी मुबर्रा को कबूल नहीं कर पाएंगे। ज़ैनब का रिश्ता भी खतरे में पड़ेगा। और परेशा इसमें सबका क्या कसूर था? मुझे माफ़ कर देना लड़की, तुम बहुत मासूम हो, पर तुम्हारी मोहब्बत को मैं कबूल नहीं कर सकता। ज़ेरे लब बड़बड़ाता वो मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। इससे सारम की काल आ रही थी कि मेहमान तकरीबन पहुंच चुके थे। वो भी तैयार होकर नीचे जाया। 4 साल बाद सिराजुद्दीन का घर एक बार फिर से जगमगा उठा था। निकाह की तकरीब ने अरूज पर थी। सारे इंतजामात बेहतरीन तरीके से किए गए थे।
सामने स्टेज पर मौलवी साहब उमर और ज़ैनब का निकाह पढ़वा रहे थे। इसके बाद रिश्तेदार और प्रोफेसर का निकाह होना था। हर कोई दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहा था। 16 साल की दुल्हन बनी ज़ैनब पर टूट कर रो आया था। क्या देख रही हो मुबर्रा? अरफा ने इसे देखते हुए पूछा। जी, जो जामुनी रंग की फ्रॉक पहन पे तन की एक मुश्त बैठी सामने ज़ैनब को देख रही थी। कितना फर्क था दोनों के नसीबों में। सामने बैठी लड़की जाति का शिकार हुई थी, फिर भी आज वो मोहब्बत का ताज सर पर सजाई किसी की बीवी बन गई थी और वो इसके साथ जाती नहीं हुई थी। इसके बावजूद शेर के नाम शेर के नाम की तहमत इस पर लग चुकी थी। कोई इसे अपनाने को तैयार नहीं था। वो कैसे किसी को यकीन दिलाए कि आज भी इसकी इज्जत महफूज थी। मुबर्रा, क्या हुआ? अरफा ने इसे कुमश पाकर इसका कंधा हिलाया। वो इसे ठीक नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ अरफा, फिक्र मत करो। मुबर्रा ने इसे तसल्ली देते हुए सामने देखा जहाँ उमर और ज़ैनब का निकाह हो चुका था। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। हर तरह किसी का माथा जब एक कदम आशा घबराई हुई वहाँ आई और शाहिद खान के कान में झुक कर कुछ कहने लगी। जरा सी देर गुजरी थी कि अचानक स्टेज का माहौल बदल गया। इर्तिजार और उमर उठकर घर के अंदर बढ़े थे जबकि सिराजुद्दीन खड़े शाहिद खान से कुछ कह रहे थे। अंदाजा काफी भ्रम था। ये क्या हो रहा है बाबा साईं? अरफा मुबर्रा ने सवालिया नजर से साथ बैठे वजाहत शेख से पूछा, जो खुद भी मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं देख कर आता हूँ। वो उठकर वहाँ से चले गए ताकि खबर ले सके आखिर मामला क्या है। अम्मा, अभी उमरा निर्दत शेख की तरफ बढ़ती कि तभी दो औरतें इनकी टेबल चली आई। हाँ निद्रत, सुना तुमने? शादी की दुल्हन भाग गई किसी लड़के के साथ। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया आजकल के लड़कियां। उफ, इनमें से एक औरत कानों को हाथ लगाते हुए बोली। और फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे मेहमान आपस में सहम गोइयां करते तरह तरह की बातें करने लगे। वो औरतें भी निडर शेख से मजीद कुछ कह रही थी जबकि मुबर्रा और अरफा साथ बैठी एक दूसरे को तकने लगी। कहीं वो लड़का तो नहीं जिसके साथ प्लवशा अक्सर यूनिवर्सिटी में दिखाई देती थी। अरफा की बात पर मुबर्रा को याद है प्लवशा ने किस तरह बेतसुर चेहरे से निकाह की मुबारकबाद वसूल की थी। इसके चेहरे पर खुशी की कोई चमक नहीं थी। वो लड़का इनके करीब जाते वहाँ से चला गया था। तभी प्लवशा ने यूनिवर्सिटी में किसी को निकाह की दावत नहीं दी क्योंकि वो पहले ही भागने का प्लान बना चुकी थी और मुबर्रा की अधूरी बात को अरफा ने मुकम्मल किया था। जब तुम तो जानती थी तुम्हारी बेटी किसी और को पसंद करती है तो फिर तुमने ये रिश्ता क्यों तय किया? ताजुद्दीन आसिया पर बरसते हुए बोले। वो सब इस वक्त घर में जमा थे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बार बार भाई मेहमान मौजूद थे जो तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझे क्या मालूम था भाई वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मैं तो शायद रिश्ता लेकर आपके पास आई थी। आश्चर्य होते हुए बोली। शाहिद खान का एक झुका सर मजीद झुक गया था। उमर का भी कुछ ही यही हाल था जबकि ज़ैनब और सानम ने शीदा बेगम को संभाल रही थी जिन्होंने रो रो कर बड़ा हल कर लिया था। पर इरशाद सब में एक वही थी पुरसकून खड़ा था। इसके नज़दीक पलवैशा इतनी कसूरवार नहीं थी जितने आंसू। शाहिद खान अगर इनकी बेटी किसी को पसंद करती थी तो इसे पूरा हक हासिल था कि इसकी पसंद का एहतराम किया जाए, ना कि इना का मसला बनाकर जबरदस्ती शादी की जाए। तुम दोनों ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? सिराजुद्दीन वहीं सर पकड़ कर बैठ गए थे। जब वह जहाज शेख की बात पर सबने चौंक कर इनकी तरफ देखा। क्या तुम मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाओगे? सिराज माँ बहरा जो बाप की ढूंढती हुई अंदर आ रही थी। वजाहत शेख की बात सुनकर इसके कदम वहीं साफ रहे। क्या तुम इस दुश्मनी को खत्म करके मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहोगे? वजाहत शेख ने एक बार फिर पूछा। सब खामोश खड़े इन्हें देख रहे थे। जब सिराजुद्दीन अपनी जगह से उठकर इनके सामने आया। तुम्हें लगता है मैं तुमसे कोई रिश्तेदारी जोड़ना चाहूँगा? मैं जानता हूँ सिराज, जो हुआ वो गलत था पर पंचायत के फैसले पर तुमने अपना बदला ले लिया था जिसकी सजा आज अपनी बेटी काट रही है। बाप की बात पर बेख्तियार मुबर्रा की नजरें इर्द शेर की तरफ उठी जो इसे ही देख रहा था। उसका दिल चाह सबको बताया इस रात इसके साथ कुछ नहीं हुआ था पर शेर की तनबीह करती नजरें इसे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। तुम खुद भी बाप हो समझ सकते हो औलाद का दुख। अगर उमर तुम्हारी बेटी से शादी न करता तो मेरी तरह तुम भी इसकी खुशियां देखने को तरसते रहते। वजाहत ने ये अपने करते हुए इनकी बात सिराजुद्दीन के सामने हाथ जोड़े थे। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना लो वरना इर्द शेर के नाम की तहमत कभी इसका घर बसने नहीं देगी। बाबा से मुबर्रा का दिल चाह फुट फुट कर रोए। इसने बोला सब चाहता कि सबके सामने इसके बाबा से यूं झुक जाए। ताजुद्दीन ने एक नजर वजाहत शेख के जड़े हाथ पर डाली और फिर मुबर्रा को देखा जो बाप के लिए रो रही थी। इन्हें इस पर तरस आया। भाई के लिए की इसी सजा वो मासूम भुगत रही थी। 4 साल पहले एक फैसला पंचायत ने किया
تھا اور 4 سال بعد ایک ساتھ سراج الدین نے کرنا تھا، جو ایک بار پھر اس لڑکی کی زندگی کو بدلنے والا تھا۔ سراج الدین آگے بڑھے اور پھر وہاں وہ ہوا کہ سبھی لوگ حیرت سے گنگ رہ گئے۔ سراج الدین نے وجاہت شیخ کو گلے لگا لیا تھا۔ وجاہت کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر کے مہمانوں کے سامنے میرا سر جھکانے سے بچا سکتے ہو؟ اگر وجاہت شیخ ان کے سامنے جھکے تھے تو وہ بھی بڑا پن دکھاؤ اور مبارک کا ہاتھ مانگ کر انہیں عزت بخش کہہ دے۔ اگر اس شیر بیٹے کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے خوشی ہوگی اپنی بیٹی کو تمہارے گھر کی بہو بناتے ہوئے۔ اب کی بات سب کی نظر شیر کی طرف اٹھی تھی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر وہ گڑبڑا اٹھا، جو بابا صحیح کا فیصلہ ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، چلو پھر طے ہوا، مبرہ ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ اب سب یہاں کا کھڑے ہو جاؤ، جا کر نکاح کی تیاری کرو۔ سراج الدین کے کہتے ہی سب فوراً گھر سے باہر نکل گئے تاکہ نکاح خواہ اور مہمانوں کو اس نئی تبدیلی سے آگاہ کر سکے۔ اب وہاں صرف سراج الدین، مبرہ اور وجاہت شیخ رہ گئے تھے۔ سراج الدین دونوں باپ بیٹی کے لیے کیرے میں بات کرنے کا وقت دیتے خود بھی وہاں سے باہر چلے گئے تھے۔ بابا صاحب، مبرہ وجاہت شیخ کے سامنے، میں جانتا ہوں بیٹی تم شیر کو پسند کرتی ہو۔ میں نے تمہاری اور تمہاری سہیلی کی باتیں سن لی تھی۔ گاہ کی بات پر اس نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔